Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to study is the heart. Heart is a conical structure. See, this is a conical structure. इसको inverted cone भी कहते हैं. ये देखिए cone की back है and this is the cone. ठीक है. So it's a conical structure. ठीक है. That has an apex, base, four surfaces, four borders, and the crater vessels that enters or emerge from it. This is the heart is in the form of inverted cone. This is the inverted cone and it has a base. Base is actually posterior aspect of the heart. ठीक है. बेस को हम हार्ट का posterior aspect भी कहते हैं. उसके बाद it has an apex. This one is the apex and this is pointed. Next comes apex of the heart. पहले हम इसको रीड करेंगे फिर नेक्स्ट करेंगे. The apex of the heart is formed by inferolateral surface of the left ventricle, lies posterior to left fifth intercostal space in adult, usually approximately 9 centimeter from the median plane. ठीक है. लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पे अपेक्स प्रेजेंट होती है और 9 सेंटीमीटर अवे होती है मीडियन प्लेन से. उसके बाद क्या है कि रिमेन्स मोशनलेस थ्रू आउट द कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल हमारा जब हमारी मतलब ये हार्ट बीट के साथ एक कार्डियक साइकिल चलता है तो उसमें ये मोशनलेस रहती है. एंड इज द पार्ट वेयर द साउंड ऑफ मिट्रल वाल्व क्लियर इज मैक्सिमम, दैट इज एपेक्स बीट. ये देखें, दिस इज अपेक्स. ये हमारे पास यू शेप्ड इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन इज द राइट वेंट्रिकल. So this is formed by the inferior and lateral surface of the left ventricle. Okay, this is the inferior and lateral surface of inferior-lateral surface of left ventricle. It is pointed. It is present at the level of the fifth intercostal space, 9 centimeter lateral to the median plane. Then comes the base. This is the base. It is actually the posterior aspect of the heart. Heart सामने से सिर्फ ये पार्ट नजर आता है. ठीक है. इसने जरा इसकी पोजीशन चेंज की है. So you are also seeing the posterior part. This is the posterior part of the heart. The base is formed by mainly by the left atrium and very short part from the right atrium. इसके बाद the base faces toward posteriorly T5 to T9 vertebra. ठीक है. इट फेसेस पोस्टीरियरली T5 to T9 वर्टिब्रा के लेवल पे होती है और इसको सेपरेट करती है वर्टिब्रल लेवल से T5 और T9 से. एक तो इसके ऊपर पेरिकार्डियम होगी वो. उसके बाद आ जाएगी हमारे पास ओब्लिक साइनस, देन इसोफेगस एंड द ट्रिक्टा. उसके बाद है कि द लेफ्ट एट्रियम. This is the left atrium and four pulmonary veins. These are the four pulmonary veins drain into the left atrium. And this is the right atrium and it is drained by the superior vena cava and the inferior vena cava. So the base is formed by mainly by the left atrium and the very short part from the right atrium, and it is on the posterior aspect of the heart. Next comes surfaces. There are four surfaces of heart. Anterior, that is sternocostal surface. Inferior, that is diaphragmatic surface. Then the right pulmonary surface and the left pulmonary surface. See, these are the surfaces. This is the right pulmonary surface. This one is the left pulmonary surface. This one is the inferior surface, that is called the diaphragmatic surface because it is towards the central tendon of diaphragm. And this hole is called the sternocostal because it is deep to sternum and ribs. The sternocostal surface. अब the sternocostal surface, that is called the anterior surface, is mainly formed by the ये right ventricle से बनती है और ठीक है, mainly from the right ventricle and the slight part from the left ventricle. Then comes this one is the diaphragmatic surface. ठीक है.
It is mainly formed by the left ventricle. This is the left ventricle and a slight part from the right ventricle. Then comes the right pulmonary surface. This is formed by the right atrium. Okay, and this is the left pulmonary surface that is formed by the left ventricle, and it is the surface, ये वो वाली surface है that will form the cardiac impression. आप चेस्ट एक्सरे पकड़ोगे, आपको वहाँ पे एक impression मिलेगी. ठीक है, लंग्स नजर आएंगे और लेफ्ट लंग के लेवल पे जो है वो एक इम्प्रेशन होगा. ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लेफ्ट पल्मोनरी surface. Then comes the borders. There are four borders of the heart. That is the right border, this one left border, the superior border, and this one is the inferior border. राइट बॉर्डर देखिए कॉन्वेक्स है, ऐसे गोल्स है कॉन्वेक्स, तो ऑब्लिक स्लाइटली कॉन्वेक्स है. And right border of the heart is formed by the right atrium, and it starts from the superior vena cava and end at the opening of inferior vena cava. तो आप ये कहना है कि right border is formed by the right atrium starting from the superior vena cava and end at the inferior vena cava. Then comes the left border. Left border is formed by the left ventricle and very slight part from the left auricle. Okay? This is left auricle. The superior border is formed by the right and left atrium, and this ये जो ear like projection है ना, ये ear, it is auricle, and right and left auricle, right. उसके बाद आ जाता है हमारे पास this one is the inferior border. It is formed by the right ventricle and a slight part from the left ventricle. So there are four border. This is the right border, this is the left border, this is the superior, this is the inferior border. अब हम आ जाते हैं राइट एट्रियम के ऊपर. This is the right atrium, this is left atrium, this is the right ventricle, this is left ventricle. The septum between right atrium and left atrium is called interatrial septum, and the septum between right ventricle and left ventricle, this one is called the interventricular septum. अब आप देखिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे दिस इज द एवी ऑरिफिस. इट इज आल्सो कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस. दिस इज द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस, दिस इज द लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस. राइट साइड पे जो ऑरिफिस है इट हैज द ट्राइकस्पिड ऑरिफिस, ठीक है, that encloses the tricuspid valve, and the left वाला orifice है it has the mitral valve. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके पास दिस इज द राइट एट्रियम. अगर हम राइट एट्रियम को डीपली स्टडी करें, सी दिस इज द डीप स्टडी. So it has an anterior wall and posterior smooth wall. ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये ऊपर वाला पार्ट इसने काट दिया तो ये posterior smooth wall नजर आ रही है. ठीक है, दिस एंटीरियर पार्ट जो है वो देखिए एंटीरियर पार्ट इज full of muscles. These muscles are called the pectinate muscles, and the posterior part is smooth. This wall is called sinus venerum. Sinus venerum, right? And this has a this is the opening of superior vena cava, inferior vena cava, and here is the coronary sinus is on the smooth wall that is sinus venerum. उसके बाद ये देखिए कि जो राइट एट्रियम है, दिस इज द राइट एट्रियम, इसके इंटर एट्रियल सेप्टम के अपर पार्ट पे एक डिप्रेशन है. दिस इज द डिप्रेशन, दिस इज फोसा ओवेलिस, that is remnant of the foramen ovale. This is an MCQ, that fossa ovalis is the remnant of the foramen ovale. Foramen ovale fetus में होता है, वहाँ से ब्लड राइट एट्रियम से शंट करके लेफ्ट में चला जाता है, लेकिन आफ्टर बर्थ फोरामेन ओवेल क्लोज होकर फोसा ओवेलिस बना देता है. ठीक है, बट इफ दिस फोरामेन विल परसिस्ट द ब्लड विल कंटिन्यू टू शंट फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम and left atrium to left atrium से right atrium में blood shunt करेगा, and this will result in cyanosis वगैरह हो जाएंगी, cardiac diseases जो भी होती है वो हो जाएगी. तो
तक हमने राइट एट्रियम में पढ़ा कि राइट एट्रियम हैज अ कोरोनरी साइनस, इट हैज ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना cava एंड inferior vena cava, and it has a in, foramen ovale that is at the upper end of the interventricular foramen. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इसकी जो इंटीरियर वाला that is full of muscles that are called the trachinate muscle, and posterior wall is smooth and is called the साइनस विनरम। देन हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम इस फ्लैप को ऊपर रखते हैं, इसको क्लोज कर दें। देखिए मैं किसी जगह देखती हूँ क्लोज हो गया, ये देखिए क्लोज हो गया, ठीक है। तो दिस आउटर सल्कस इज कॉल्ड सल्कस टर्मिनलस, ठीक है। ये जो आउटर आपको नजर आ रही है लाइन, दिस इज सल्कस टर्मिनलस। आप लिखेंगे द स्मूथ एंड आउटर पार्ट ऑफ द वॉल इज सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ सल्कस टर्मिनलस, और इंटरनली जो होता है वो थोड़ा प्रोजेक्टेड, थोड़ा थिकन पार्ट होता है, दैट इज द क्रिस्टा टर्मिनलस, इट्स आल्सो कॉल्ड द टर्मिनल क्रेस्ट। एंड जो दिस वन स्मूथ पार्ट, इसके ये जो सल्कस टर्मिनलस है, इसके अपर साइड पे यहाँ पे देयर इज द एसे नोड दैट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। दिस इज द एसे नोड दैट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो ये आपकी राइट एट्रियम की डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया। अब आपको लेक्चर में मैं क्लिनिकल ट्रीटमेंट की बता पाई, वो हम कर लेते हैं। दिस इज द एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना पेक्टोरस होता है जिसको कहते हैं दिल का दर्द, दिल पे कोई दबाव पड़ना, दिल का दर्द होना, ठीक है, इसको एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं, ठीक है। पेन दैट ओरिजिनेट इन द हार्ट इज कॉल्ड द एंजाइना पेक्टोरस। राइट इन द सेम वे, जिस तरह मैंने लिखा है इसी तरह आपने पेपर में लिखना है, गप नहीं लगानी, ठीक है। ये KLM की डिटो कॉपी है, आपने इसी तरह पेपर में लिखना है, ठीक है। In Latin, angina is strangling pain and pectoris is chest. Patient with angina complains of tightness or pain in thorax. ये thorax है, थोड़ा नहीं, ठीक है, thorax है। तो वो क्या कहेगा कि मुझे टाइटनेस, वो आएगा हॉस्पिटल, कहेगा मुझे टाइटनेस हो रही है चेस्ट पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल बंद होता पे है, इस तरह कहते हैं लोग ज़्यादा, ठीक है। एंड द पेन इज डीप टू स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे उसको हो रही होगी, और 15 से सेकंड से 15 मिनट तक रहती है ये पेन। काजेस क्या क्या हो सकती है? द पेन इज रिजल्ट ऑफ इस्कीमिया ऑफ मायोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई ठीक नहीं जा रही। यहाँ फिर क्या है, मोस्ट ऑफन एंजाइना रिजल्ट फ्रॉम नैरोड कोरोनरी आर्टरी, जब हार्ट की सप्लाई होती है कोरोनरी आर्टरी से, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देयर इज द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड देयर इज द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो अगर कोई भी प्लेग, थ्रोम्बस, लेफ्ट, यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताऊंगी, ज़्यादातर जो लेफ्ट एट्रियम की इम्पोर्टेंस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर का आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है MCQ की, जो थ्रोम्बस है ना, जो क्लॉट्स है, वो ज़्यादातर किस हार्ट के किस पार्ट में बनते हैं, तो डैट विल फॉर्म इन द लेफ्ट एट्रियम में बनते हैं, ठीक है। दैट इज़ द, उसको कहते हैं कि एक साइट है फॉर द थ्रोम्बस। तो यहाँ पे क्या होगा कि नैरो कोरोनरी आर्टरीज हो जाएंगी। अब मैकेनिज्म, ये फ्लो शीट ऐसे ही आपको पेपर में बनानी है। दैट इज, सबसे पहले क्या होगा कि इस्कीमिया होगा, ब्लड फ्लो ही नहीं मायोकार्डियम को गया। मायोकार्डियम को जब हार्ट हैज 3 लेयर, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम सबसे बाहर होती है, जिसको हम विजिटल पेरिकार्डियम भी कहते थे, ठीक है। तो जब ब्लड सप्लाई नहीं ना मिलेगी, तो मायोकार्डियम इज मेड ऑफ मसल्स, तो मसल्स को जो है वो ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाएगी। जब लेस ऑक्सीजन डिलीवरी टू कार्डियक मसल्स होगी, तो दिस विल रिजल्ट इन एरोबिक मेटाबॉलिज्म, से मायोसाइट जो है वो जम करके चले जाएंगे एनएरोबिक पे। अब आप लोगों ने पढ़ा, आपको पता होना चाहिए, जब भी एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होती है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज भी करते हो तब भी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होती है, और लैक्टिक एसिड, आप थक जाते हो, क्यों थक जाते हो? क्योंकि लैक्टिक एसिड अकमुलेट हो जाता है। लैक्टिक एसिड अकमुलेट होगा तो जारी बात है, दिस इज एन एसिड, तो पीएच क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। व्हेन पीएच लो, तो फिर क्या होगा, पेन रिसेप्टर जो होंगे ना, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। मायोकार्डियल जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे, और जब वो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो उसकी वजह से पेन होगी, तो एज अ रिजल्ट एंजाइना अकर। देयर इज रिड्यूस ब्लड फ्लो है तो ऑक्सीजन डिलीवरी डिक्रीज कर जाएगी मसल्स को। उसके बाद एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा,
एनारोबिक होगा तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। लैक्टिक एसिड ने पीएच को लो किया और पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर दिया और उसकी वजह से पेन स्टार्ट होगी, दैट इज कॉल्ड एंजाइना। ट्रीटमेंट कैसे है कि इसका रिलीफ करते हैं हम, रेस्ट से करवाते हैं, ज़्यादातर रेस्ट से होता है। या फिर आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जब हार्ट अटैक का शक होता है तो लोग जबान के नीचे एक गोली रख देते हैं छोटी सी, दैट इज सबलिंगुअल अंडर द टंग नाइट्रोग्लिसरीन रखते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, डायलेट्स द कोरोनरी वेसल्स। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि अगर आपको एंजाइना पेक्टोरस दिल का दर्द है तो इट कैन लीड टू मायोकार्डियल इंफाक्शन, दैट इज हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। अब नोट क्या है, एंजाइना किसी बंदे में हार्ट अटैक नहीं हुआ लेकिन दिल का दर्द होता है तो इट प्रोवाइड्स अ वार्निंग दैट कोरोनरी आर्टरीज आर कंप्रोमाइज, ये वार्न कर देती है कि कहीं ना कहीं कोरोनरी आर्टरीज में मसला आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, दिस इज द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये देखिए, वो जो मैंने आपको पीछे सारा प्रोसेस बताया कि ये देखिए स्कीमिया चल रहा है, ब्लड सप्लाई ये रेड रेड देखें, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है और वो ब्लू एरिया हो गया, नेक्रोज होने स्टार्ट हो गया। तो हमने क्या करना है कि एक प्रोसीजर करना है जिससे देखें ब्लड फ्लो ठीक हो जाता है, दिस इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये ज़्यादातर उनमें कहते हैं जिनमें कोरोनरी आर्टरीज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है। पेशेंट विद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज एंड सीवियर एंजाइना जिसकी पेन इन ठीक हो रही है may undergo a coronary artery bypass graft operation। इसमें क्या करते हैं, a segment of any artery लेते हैं या फिर vein is connected to ascending aorta or to the proximal part of coronary artery, this is ascending aorta एंड ये कोरोनरी आर्टरीज आ रही है तो उसके प्रॉक्सिमल पार्ट से अटैच कर देते हैं, ठीक है। असेंडिंग एओर्टा से और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कोरोनरी आर्टरी से अटैच कर देते हैं। एंड देन टू कोरोनरी आर्टरी डिस्टल टू स्टीरोसिस, ज़्यादातर जो हम वेन चूज करते हैं दैट इज द ग्रेट सेफिनस वेन, दिस इज द ग्रेट सेफिनस वेन जो आपकी टांग की वेन है, आप लोगों ने लोअर लिम्ब में पढ़ी होगी। यहाँ फिर हम रेडियल आर्टरी भी आजकल कॉमन हो गया, ठीक है। या तो ग्रेट सेफिनस वेन लेते हैं या रेडियल आर्टरी। ग्रेट सेफिनस वेन को सर्जन क्यों लेते हैं, इसके तीन फायदे हैं, एक तो इसका डायमीटर अच्छा है, यहाँ तो कोरोनरी आर्टरी के बिल्कुल इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। दूसरा क्या है, इजीली डायसेक्ट, सुपरफिशियल होती है ना तो इजीली डायसेक्ट हो जाती है फ्रॉम लोअर लिम्ब। और तीसरा क्या है, ऑफर अ लेंथी पोर्शन विद मिनिमम वॉल्स एंड ब्रांचेस, लंबी सी हमें वेन भी मिल जाएगी और वॉल्स भी नहीं उसमें इतने होते और ब्रांचेस भी कम होती है, इसलिए हमें ज़्यादा एनास्टोमोसिस नहीं बनाने पड़ते हैं। इसके अलावा यूज ऑफ रेडियल आर्टरी भी कॉमन है। अब कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट के बाद क्या होता है, shunt blood from aorta to a stenotic coronary artery to increase flow despite to obstruction। जब हम ये बाईपास लगा देंगे ना तो ब्लड डायरेक्टली एओर्टा से राइट कोरोनरी आर्टरी में आएगा, ठीक है, और फ्लो इसका जो है वो बढ़ जाएगा और उस वजह से ये जितना भी स्कीमिया है ये सेटल हो जाएगा। थैंक यू।